अभी अपन तीसरा पर्व के बारे में अपन देखने Now वाले we're हैं। going to see about the third feast. हर एक फीस्ट में अपन कुछ ना कुछ अपन स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, In every feast we are seeing something spiritual. लेकिन एक चीज वो पिछले इसमें अपन सिर्फ आधा पोर्शन अपन पढ़े थे। So last session we had just read one thing, only half. फर्स्ट कोरिन्थियन 5th चैप्टर वर्स 8 अपन पढ़ेंगे। 1 Corinthians 5th chapter verse 8. सो हमने देखा था कि जो गूंदा हुआ आटा के अंदर So we had seen that the lump, the flour, उसमें कमीर नहीं होना चाहिए। there shouldn't be any leavenness. कमीर निकल जाने के बाद When the leavenness is gone, हमारे अंदर एक चीज होना चाहिए, there should be something in us. उसमें 8वां वचन अपन पढ़ेंगे। If you see the 8th verse, Therefore, हाँ, let us keep the feast not with the old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. यहाँ पर अनलीवन कैसा होना चाहिए? how the unleavened should be, सिंसियरिटी और ट्रूथ होना चाहिए। there has to be sincerity and truth. सिंसियरिटी नहीं है If there's no sincerity, सो कोई भी व्यक्ति में स्पिरिचुअल करके बता नहीं सकते। nobody can say that I'm spiritual. स्पिरिचुअल है तो सिंसियरिटी होगा। If it's spiritual, then there will be sincerity. सो सिंसियरिटी और ट्रूथ एक साथ होना चाहिए। Sincerity and truth should be together. वचन के अंदर एक सिंसियरिटी In the sincerity is in the word. ना, एक शब्द है Now there's हिब्रू a के word. अंदर, क्षमा करके एक शब्द है। There's a word called saying Shema. क्षमा प्रेयर करके बाइबल के अंदर है। There's a prayer called as Shema. क्षमा प्रेयर, Shema prayer in the scripture. उसमें ड्यूटोनोमी 6 चैप्टर वर्स 4 बोला जाता है। We say that it's in Deuteronomy chapter 6 verse 4. उसमें ऐसे लिखा है, It's written such a way. हिब्रू में मैं बताता हूँ। I'll say it in Hebrew. क्षमा इज़राइल, Shema Israel, अडोनाई एलोहेनु, Adonai Eloheinu, अडोनाई एखाद। Adonai Echad. इसमें क्षमा करके जो वर्ड है, The word Shema, उसको इंग्लिश में आप हिंदी में बोलेंगे तो, if you say it in Hindi or हे English, इज़राइल सुन, listen, hear, O Israel, तेरे यहोवा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। the Lord our God is one Lord. सो उसमें जो सुन करके जो वर्ड है, So the word which is saying that here, वो हियर के लिए एक वर्ड दिया गया है, क्षमा। to say here, there's a word given as Shema. ये क्षमा जो है इसमें 3 मीनिंग है Shema has 3 meaning to it. ना। बाइबल में एक वचन है कि फेथ कमत बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। The word of God says the faith here cometh by hearing and hearing the word of God. जब वचन सुनते हैं, When we hear the word of God, अपना वचन, अपना विश्वास बढ़ जाता है। our faith increases. लेकिन 20 साल से वचन सुनते आए हैं, But we've been listening to the words since 20 years, 30 years. लेकिन कुछ लोगों का विश्वास अभी तक बढ़ा नहीं है। But some people, the faith is not yet increased. तो क्या वचन में गड़बड़ है क्या, So is there any defect in the word, या अपने अंदर प्रॉब्लम है? or there's a defect in us? ट्रांसलेशन के अंदर पूरी तरह से ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। In the translation, it's not, the translation is not always correct. अब अभी मैं हिंदी में मैं बोलता हूँ, Now I'm saying it in Hindi. उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के समय So when I'm translating in English, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हो सकता है। there will be few problems there. हिब्रू का जो वर्ड है, The Hebrew word, उसे ट्रांसलेशन करने के समय पूरी तरह से ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। when they try to translate, it's not completely translated. क्षमा का मीनिंग होता है, The meaning for Shema is, इसमें 3 मीनिंग है। there are 3 meaning to it. एक जो है सुनना, One is to hear. दैट इज अपन सब जन सुनते हैं, प्रभु का वचन को सुनते हैं। We all listen to the word of God. आप जब प्रचार करते हैं, आपका मंडली में लोग सुनते हैं। When we preach, the congregation in your church, they listen to it. लेकिन सुनने के बाद क्या? But after listening to it, what? इसमें और एक मीनिंग है क्षमा के लिए, There's one more meaning for Shema, कि समझना। to understand. सो सुनना अकेला नहीं है, Not only by hearing, जो कुछ आपने सुना है उसे समझना है। whatever you have heard, you have to understand. अगर नहीं समझे, If you don't understand, लोग बोलेंगे आज विलियम पास्टर ने क्या बढ़िया मैसेज दिया करके बोलेंगे। people will say that Pastor William had preached wonderfully. क्या मैसेज दिए? What message? नहीं, बहुत बढ़िया मैसेज था। They will say, no, wonderful message. सुना है, They have heard, लेकिन समझा नहीं। they did not understand. लेकिन कुछ लोग जो है सुनेंगे But some will hear, और समझेंगे। they will understand. और तीसरा मीनिंग क्या है? You know what's the third meaning? कि उसका पालन करना। They will obey. सो 3 मीनिंग होता है।
There are three meanings to it. क्षमा के लिए तीन मीनिंग है। There's three meaning to Shema. एक सुनना, One is to hear, एक समझना, one is to understand, और तीसरा जो है ओबे करना। and the third one is to obey. अगर ये तीन चीज एक व्यक्ति के पास होगा तो If these three things are there in the one person, उनका विश्वास नंबर 1 होगा। their faith will be in number one position. आज बहुत से लोग सुनते हैं, Today many are hearing it, नहीं समझेंगे, they don't understand, लेकिन पालन करने के लिए कोशिश करते हैं। but they try to follow it. ऐसा पालन करने के समय When they try to obey, क्या होगा मालूम है? you know what happens? गलत पालन करते रहेंगे। They would be following a wrong thing. सो ऐसा नहीं होना है। So that shouldn't be this way. सो इस तरह चीज है। So that's how it is. आज अपने बीच ये जो कुछ अपन सीख रहे हैं, So whatever we are learning today, अभी अपन देखा था जो कुछ अपना जो कमीर है उसे निकल जाना है, so we saw that whatever the soreness is there, that should go away. और उसके अंदर जो सिंसियरिटी और ट्रूथ है वो अपने अंदर आना चाहिए। The sincerity and truth should come in us. ये सिंसियरिटी क्या है? What is the sincerity? वही स्पिरिचुअल है। That is spiritual. वो लोग बोल रहे हैं आई एम वेरी स्पिरिचुअल करके बोलेंगे, They may say that I'm very बहुत very spiritual. धार्मिक हूं करके बोलेंगे, They will say I'm very righteous. लेकिन सिंसियरिटी नहीं होगा तो नहीं दे आर उन लोग धार्मिक नहीं But है। if there is no sincerity, there is no righteousness. सो ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। So the obedience is better than sacrifice. सो आज अभी अपन दूसरा एक पर्व के बारे में देखेंगे, उत्सव के बारे में। Let's see about this next feast. नाउ दूसरा उत्सव जो है, The next feast, ये उत्सव के बीच में ही किया जाता है। it's during the feast time. ये 7 दिन का जो मत्सोत जो त्योहार है, The feast of 7 days, Matsot, वो 7 दिन के बीच में, between the 7 days. उसमें कोई भी एक दिन ये त्योहार मनाया जाता है। So in between any one day, we celebrate that festival. और उसे बोलते हैं फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, And we call it as feast of harvest. नहीं तो फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट करके बोलते हैं। We call it as feast of first fruit. सो इन लोग एक्चुअली इन लोग क्या करते थे, You know what they do? जब फसल उग जाता था When the grains are grown, और उगने के बाद at that time, वो जो मालिक जो है वो बगीचे के अंदर जाएंगे, the owner will go into the farm, उसमें जो फर्स्ट फ्रूट निकल कर आता है, and whatever the first fruits of that the grains, पहला गेहूं का जो वाद है जब वो निकल कर आता है, the first barley of the wheat, सो वो उन लोग चेक करते हैं। they check that. तो उन लोग का बगीचे में चलकर जाएंगे, So we'll just walk the farm. और चलकर जाने के समय उनको लगा हाँ ठीक है यहाँ पर फल आया है, If they feel that yes, there is a fruit here, लेकिन उसमें थोड़ा सा कमजोरी है, but there is some defect in it, तो उसे छोड़ देंगे so they will leave it. और आगे बढ़ते जाएंगे They keep going. और चेक करेंगे हाँ यहाँ पर दूसरा फल आया They है। check the next one, that's a good fruit. उन लोग जो जितना भी बेस्ट फ्रूट आता है, Whatever the best fruit, वो फ्रूट को उन लोग क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, they harvest that best और fruit, उसे लेके आकर प्रभु के भवन में आकर and they bring that first fruit. उसे याजक के हाथ में देने के समय They get it to the tabernacle, and when they give it to the priest, याजक वो बंच को लेते हैं the servant of the priest takes that bunch, और अंगार के अंदर वेव ऑफरिंग चलाते हैं। and he does a wave offering with the fire. इनका बिलीफ ऐसा है, They believe such a way, और बिलीफ ही नहीं वो हकीकत है, and it's not a belief, it's the truth. कि जो हार्वेस्ट होने वाले वो हार्वेस्ट बेस्ट हार्वेस्ट प्रभु हमें देंगे। The harvest should be the best harvest for us. इसलिए वो फर्स्ट फ्रूट जो है प्रभु को चढ़ाया जाता है। So that's why they give the first fruit to God. ये फर्स्ट फ्रूट जो है जब उन लोग चढ़ाते हैं, When they sacrifice the first fruit, उन लोग एक्चुअली प्रभु को हॉनर कर रहे हैं। they honor the Lord. सो आज अपने जीवन के अंदर भी Today in our life, जब फर्स्ट फ्रूट निकल कर आता है, when the first fruit is out, वो फर्स्ट फ्रूट में बेस्ट वन प्रभु को अपन देना है। we have to give the best out of the first fruit. सो ये जो फर्स्ट फ्रूट को इब्रू में बोलते हैं, So the first fruit in Hebrew it is called as, बिकोर, it's called as bikor. बिकोर करके बोलते हैं। We call it as bikor. ना कल अपन देखा था Yesterday we saw, बेकोरा करके देखे थे। we have seen bekora. ना डोंकी का फसलिंग को क्या बोलते हैं? What do we call donkey's firstling? पेटर करके बोलते हैं। We call petter. पीटर समझ लीजिए। You think it as Peter. पेटर करके बोला तो वो डोंकी का फसलिंग को पेटर करके बोलते हैं। Petter means donkey's firstling. इसलिए प्रभु ने पीटर को पहला डिसाइपल करके चुन लिया है। That's why Lord chose Peter as the first disciple. और सेकंड थिंग, अभी ह्यूमंस के अंदर अगर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, If it's the firstborn child in humans, तो उनको बोलते हैं बेकोरा। then we call them as bekora. लेकिन फ्रूट्स के अंदर फर्स्ट फ्रूट है, If it is the first fruit, तो उसे बोलते हैं बिकोरा, बिकोर।
then we say it as Bikor. सो बिकोर बोलेंगे तो फर्स्ट फ्रूट ऐसा करके So मतलब if है. we say Bikor, that means first fruit. क्रॉप्स के अंदर फर्स्ट फ्रूट को बोलते हैं बिकोर. So in the crop, the first fruit of the crops are called as Bikor. जो भी फर्स्ट फ्रूट आप हार्वेस्ट करेंगे उसे बोलते हैं बिकोर. The first fruit which is harvested is called as Bikor. आज हमारे लिए फर्स्ट फ्रूट कौन है? Who is the first fruit for us? यहोशुआ इज द फर्स्ट फ्रूट. Yehoshua is the first fruit. हाँ, उनका ही वेव ऑफरिंग चढ़ाया गया है. The wave offering was of him. नाउ दूसरा एक वर्ड है Now दैट इज फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट के लिए. Now there's another word for the feast of first fruit. उसके लिए बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल करके. They call it as an harvest festival. ये हार्वेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. This harvest is important. इसे हिब्रू में बोला जाता है In Hebrew we say it as, काटसिर. we call it as katsir. काटसिर करके बोला तो When they say katsir, उसका मतलब होता है हार्वेस्ट. it means harvest. सो फेस्टिवल को क्या बोलना है? So what do we call festival? फेस्टिवल को हग. We call festival as Hag. एंड हार्वेस्ट को क्या बोलना है? And what do we say harvest? काटसिर. Katsir. काटसिर के अंदर 4 अक्षर आता है. There are 4 alphabets in Katsir. एक कोफ आता है One is a Kof, और उसके बाद साडे करके एक अक्षर है. then Sade, एंड देन योद करके अक्षर है. then we have Yod एंड देन रेश करके अक्षर है. and Resh. ये 4 अक्षर मिलने के समय These 4 alphabets हम उसे काटसिर करके बोलते हैं. are called as Katshir. काटसिर बोलेगा तो हार्वेस्ट. Katshir means harvest. ना ये हार्वेस्ट के लिए प्रभु ने भी कहा था ना, For harvest, Lord also said, फसल ज्यादा है. the harvest is more. सो इसलिए हार्वेस्ट का जो मालिक है उनसे प्रार्थना करो So pray to the owner of the harvest ज्यादा लोगों जो हार्वेस्टर को प्रभु भेजे. that he sends many people to harvest. आज हर एक सेवक लोग जो है एक हार्वेस्टर है. Today every servant of God is a harvester. अपन सब जन लेबरर्स है, Everyone is a laborer. लेकिन आपको नहीं पता है आप. But do you know who you are? आपको मैं अभी ये वर्ड से मैं आपको बताऊंगा Today now I'm going to tell you about from this प्रभु word ने आपको कौन सा स्थान में प्रभु ने रखा है. which you are in which place. देखो हिब्रू डिकोडिंग जो है See the deep Hebrew decoding. वो आपका हर एक चीज का फाइनल प्रूफ है. This is a final proof of everything. जो कुछ आप आज तक प्रीचिंग किए हैं Whatever you were being preaching these उसको days, सील करना जो है ये डिकोडिंग का काम है. the decoding seals that. ना मैं एक छोटा सा मैं एक नमूना में आपको बताता हूँ. I'll give you a small example. अभी मूर्ति करके बोलते हैं. We say it as idol. मूर्ति को हिब्रू में बोलते हैं The idol in Hebrew we say that. येलिल करके बोलते हैं. We call it as Elil. येलिल बोलेगा तो आइडल. Elil means idol. ना तमिल में येलिल करके बोला तो ब्यूटीफुल करके मतलब है. Now in Tamil if you say Elil that means beautiful. लेकिन हिब्रू में येलिल बोलेगा तो आइडल. But in Hebrew Elil means idol. इसमें 4 अक्षर होता है. There are 4 alphabets in it. ये एक एलेफ है One is Aleph, और दूसरा लैमेड, second is Lamed, उसके बाद योद then Yod, और उसके बाद फिर से लैमेड. and then again Lamed. सो ये 4 अक्षर मिलकर हम उसे येलिल करके बोलते हैं. So with this 4 alphabet is called as Elil. नाउ ये येलिल के अंदर In Elil, ये 3 अक्षर आप लेंगे, if you take these 3 alphabets, इसे बोलते हैं लाइल. this is called as Lail. लाइल बोलेगा तो नाइट. Lail means night. रात को बोलते हैं लाइल. The night is called as Lail. सो ये आइडल, ये जो मूर्ति है, This idol, ये मूर्ति का और रात का कुछ संबंध है. there's some relation with this idol and night. कुछ न कुछ संबंध है. There's some relation. ये एलेफ का मीनिंग होता है पावर. Aleph means power. सामर्थ करके मतलब है. Aleph means power. सो मूर्ति बोलेगा तो क्या है? What do you mean by idol? ये रात का सामर्थ है. It's the power of darkness. ये रात का सामर्थ है. ये It's the power of night. हर एक वर्ड जो वही अपन प्रीच करते थे. That's what we were preaching. हम बोलते थे मूर्ति के पीछे नहीं जाना है. We used to preach that don't go behind idols. मूर्ति को वर्शिप नहीं करना है. Do not worship idols. इवन जीसस क्राइस्ट का मूर्ति भी होगा तो उसको वर्शिप नहीं करना है. Even it may be Jesus Christ statue, still you don't worship क्योंकि it. मूर्ति करके बोला तो उसका मीनिंग हिब्रू में क्या बोलेंगे? Because if you say idol in Hebrew, what do we say as? येलिल करके बोलेंगे. It's Elil. और येलिल का डिकोडिंग क्या है? And what is the decoding for Elil? वो रात का सामर्थ है. It's the power of night. तो ये रात का सामर्थ को अपन बाइंड करना है. We have to bind the power of night. उस रात का सामर्थ को अपन तोड़ना We है. have to break the power of night. एक बार करार का कोर्स को प्रभु लोग लेके गए, फिलिस्तीन्स लोग. Once the ark of covenant was carried by Philistines, उसको लेके जाकर ये येलिल के सामने रखा गया
गया था। They bought it in, they kept it in with the Elil. दागोन करके एक मूर्ति का सामने रखा गया था। There's an idol called as Dagon. They Da- kept it with it. दागोन का मूर्ति को प्रभु ने ऐसा तोड़ दिए, God broke the Dagon statue, प्रभु का सामर्थ के सामने ये पावर ऑफ नाइट कुछ नहीं है। and with the power of, in front of power of Christ, this Elil's power is nothing. यही अपन प्रीचिंग करते आ रहे हैं। This is what we were preaching. लेकिन हिब्रू जो है डिकोडिंग जो है उसे कंफर्म करके चले जाता But है। Hebrew decoding is confirming it. सो जो कुछ आप अभी तक प्रीच करते आ रहे हैं, Whatever you're preaching now, आप एकदम क्लियरली कंफर्म करना है तो if you want to clearly confirm it, डिकोडिंग करके कंफर्म कर सकते you हैं। can decode and confirm it. ये इस तरह हर एक वर्ड के अंदर है। This is how it is there in each नाउ word. अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, Now I'm going to tell you, अपन सब जन हार्वेस्टर है। we all are in a harvester. अपन एक फेस्टिवल के अंदर है। We are into a festival. अपन सब जन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के We अंदर are into a है। harvesting festival. किसको हार्वेस्ट करने वाले हैं? Whom are we going to एकदम harvest? अच्छा गेहूं का फल आया है, फसल आया है, उसे अपन काटना है। We have a beautiful fruit and we are going to cut it. सो अपन सब जन एक हार्वेस्टिंग के टाइम में आ चुके हैं। We are in time of harvesting. सो ये हार्वेस्टिंग में आप कौन है? What are you in this यहाँ harvesting? पर हार्वेस्ट को बोलते हैं काटसिर। The harvest is called as Katsir. इसे मैं यहाँ पर काटसिर करके लिख देता हूँ। I'll write it as Katsir. ये काटसिर करके बोलते हैं। We call it as Katsir. काटसिर बोलेगा तो हार्वेस्ट। Katsir means harvest. नाउ ये कौन हार्वेस्ट करेंगे? Who will harvest? या नहीं तो जो हार्वेस्ट करने वाले, हु आर दे? Who are they who's going to harvest? ये तीन अक्षर आप लेंगे, If you take these three alphabets, इसे बोलते हैं सीर। we call it as seed. नाउ सीर करके बोला तो आपको कुछ ना कुछ याद आता रहेगा। If you say seed, you may remember something. बाइबल में सीर करके शब्द आए है In बाइबल the के word of अंदर। God, there's a word called as seed. नाउ यहाँ पर ये सीर करके बोला तो If you say seed, इसका मतलब होता है मैसेंजर। it means messenger. सो ये हु आर द हार्वेस्टर? हार्वेस्ट करने वाला कौन है? Who are the harvesters? हार्वेस्ट करने वाला जो है मैसेंजर्स है। Harvesters are the messengers. आज अपन सब जन प्रभु का चुना हुआ लेबरर्स है। Today we all are the laborers of Christ. हम सब जन सीर है। We all are seed. ये सीर का काम क्या है? What is the work of ये seed? सीर जो है वी आर मैसेंजर्स। Seed is our messengers. और ये मैसेंजर अभी क्या करेंगे? फसल को काटेंगे। These messengers will start cutting the crops. on you. सो हम कौन है? हु आर वी? Who are we? हम सब जन एक मैसेंजर है। We all are a messenger. हम सब जन लेबरर्स We है। all are a laborer. और हम कहाँ पर है? Where are we? हम क्या करने वाले हैं? What are we going to do? काटसीर करने वाले हैं। We're going to cut seed. काटसीर बोलेगा तो हार्वेस्टिंग। Cut seed means to harvest. सो इसे हार्वेस्ट करने के लिए मैसेंजर प्रभु को चाहिए। So God wants a messenger to harvest. सो वो मैसेंजर हम है। We are that messengers. हम ही वो मैसेंजर है। We are the messengers. तो मैसेंजर बोला तो साधारण वर्ड हो गया, Messengers are a simple word. लेकिन सीर का और एक वर्ड है, Seed means another word. उसका मीनिंग होता है एम्बेसडर। That means ambassador. सो एम्बेसडर व्हाट? Ambassador. किसका ambassador? किसका एम्बेसडर है? Who's ambassador? हम उस परमेश्वर का राज्य का एम्बेसडर है। We are the ambassadors of the kingdom of मैं God. आपको एक चीज में बताना चाहता हूँ, I want to tell you one ये thing. एम्बेसडर क्या कर सकते हैं? What this ambassador can do. यू कैन क्रिएट। The ambassador can create. आप क्रिएट कर सकते You हैं। can create. आपको वो सामर्थ प्रभु ने दिया है। God has given you that power. देखो आज अपन चिन्ह और चमत्कार करने के लिए So see, today to do the miracles या अन्य भाषा में बात करने के लिए or to speak in tongues, लोग कई साल से प्रार्थना कर रहे हैं। people are praying for a long लॉर्ड, time. मेरा विश्वास को बढ़ाओ। Lord, increase my faith. मैं भी अन्य भाषा में बात करना I चाहिए, also want to speak in tongues. लेकिन अभी तक बहुत से लोगों को मिला नहीं है वो गिफ्ट। But till now, many have not got it. एक अन्य भाषा बात करने के लिए इतना तकलीफ उठाना पड़ रहा है। There's such a trouble to just for tongues. हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए इतना तकलीफ उठाना पड़ रहा For है। healing ministry, we have to take such trouble. एक क्रिएशन पावर आपके अंदर आना है तो क्या करना चाहिए? So what should we do to get the creation power in us? मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ। I always say one thing. एक कुछ लोग मुझे बोलते हैं, ब्रदर मैं बहुत गरीबी में हूँ, Some people say that I am in poverty. मैं क्या करूँ? मेरे लिए प्रार्थना करो। Please pray for me. मैं एक ही चीज बताऊंगा, प्रभु को हॉनर करो। I will tell only one thing: honor God. प्रभु को हॉनर करेंगे, प्रभु छप्पर फाड़ कर देंगे। Amen. If you honor God, God will open the doors of heaven and pour it. हाँ, प्रभु अपना स्वर्ग का भंडार को खोलकर प्रभु आशीष He करेंगे। will open the doors of heaven and pour it. हॉनर, कुछ लोग देखो कुछ हाथ में कुछ नहीं होगा,
Some people, if you see, there would be nothing in their तो pocket. उन लोग सोचेंगे अगर मेरे पास होता था ना मैं ये करता था वो करता था करके But बोलेंगे। they will think that if I would have had it, I would have done this thing, that लेकिन thing. जब प्रभु देते हैं तो But- देने के लिए मन नहीं आता है। But when God gives them, the heart of giving, helping would फिर stop. से उनसे निकाल दिया तो And again, God takes it from फिर them. से बोलेंगे नहीं नहीं मेरे पास होता तो मैं देता था। Again, they would say, if I would have had, I would have given. सो ये ऐसा नहीं है। It's not like that. जब हॉनर करेंगे प्रभु ब्लेस करते हैं। When you honor, God will bless you. सेम वे Same way, अगर आपको क्रिएशन पावर चाहिए if you want creation power, आप एक ही चीज करना है, you have to do only one thing. आप प्रभु को हॉनर करना You है। have to honor God. लेकिन कैसा हॉनर करना But है? how? प्रभु के साथ एक करार बांधकर हॉनर करना You है। have to have a वो- covenant with the Lord. प्रभु से एक वो करना है। We have to vow with the Lord. प्रभु के साथ एक प्लेज करना है। You have to pledge with God. अगर वो करेंगे If you do it, लगातार करना है। you should do it continually. ऐसे नहीं महीने में एक बार मैंने करार बांधा It's not that in once a month we do it, उसके बाद खत्म हो गया। then the promise is gone. हर दिन आपको करार बांधना है। Every day you have to have an oath with God. आप करार का बच्चा बनना है। You have to be a child of promise. आज ये खत्म होने के पहले मैं वो कैसा करना है मैं बताऊंगा। Today, before we end the session, I'll tell you how to do it. क्योंकि ये सब हिब्रू के द्वारा ही आएगा। Because it will come only out of Hebrew. क्योंकि अपन सबको पता है वो हाउ टू डू इट, We all know how to do it. लेकिन वो हिब्रू के द्वारा बताने के समय But when we explain through वो Hebrew, कंफर्म हो जाएगा आपके that's a लिए। confirmation. ठीक है, अभी ये काटसेर करके जो वर्ड है Now the word katser, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। this is for this means a और harvesting. ये हार्वेस्ट कौन करने वाले Who हैं? is going to harvest? सीर। The seer is going to do it. एम्बेसडर हार्वेस्ट करेंगे। The ambassadors are going to do it. एम्बेसडर क्या कर सकते हैं? What can the ambassador do? आप क्रिएशन कर सकते You हैं। can create. और एक बात है, One more thing. प्रभु ने 12 चेला को बुलाए God called all the 12 disciples और उनसे कहा and said, सारे अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए तुम्हें अधिकार देता हूं। I give you power to drive all the evil spirit. हर एक एम्बेसडर को प्रभु ने एक अथॉरिटी दिया है। God has given authority to every ambassador सारे इविल स्पिरिट को निकालने के लिए प्रभु ने अथॉरिटी दिया है। to remove all the evil spirits. आज वो अथॉरिटी अपने पास है, Today that authority is with us. उसे अपन एक्शन में लेके आना We है have to make it into action. और आज के बाद उसे एक्शन में लेके आना ही आना है। And after today you have to get it into एक action. भी अशुद्ध आत्मा को छोड़ने का नहीं, You should not leave even one evil spirit. उस सबको भगाना है। You have to drive all of them. और प्रभु ने और एक अधिकार दिया है, And God has given you one more power. सारे बीमारियों को All the disease और सारे कमजोरी को निकालने के लिए and all the weakness, to remove all the weakness. प्रभु ने अधिकार दिया है। God has given you power. अभी एक व्यक्ति आप ले लीजिए, Take a person. उनके अंदर कैंसर है, He has a cancer in वो him. कैंसर का बीमारी है। He has cancer. हमारे पास प्रभु ने भी अपन सब जन एम्बेसडर्स है, We all are ambassadors. अपन सब जन सीर है, We all are seer. हम एम्बेसडर्स है। We all are ambassadors. हम क्या कर सकते हैं? What can we do? उसके अंदर जो डिजीज है, Whatever is the disease, उसके अंदर जो कैंसर है, whatever cancer he has, उसे निकाल कर फेंक सकते हैं। we can remove and throw it. आपके पास वो अधिकार है You have that authority. और एक अधिकार भी है, That he has given one more authority. डिसीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। You can transfer the disease. डिसीज को क्या कर सकते हैं? What you can do the disease? ट्रांसफर कर You can सकते हैं। transfer the disease. एक बार ऐसे हुआ, एलिशा Once Elisha, वो एम्बेसडर था, he was an ambassador. एक नागमन कोढ़ी व्यक्ति आया था उसके पास। There was a Naaman who was उसको बोला leprosy. जोर्दान में 7 दफे डुबकी मारना, सब निकल जाएगा। He told him, you go to Jordan and have you dive 7 times inside. और उसी ऐसे ही किया और प्रभु ने उसे चंगाई दे दी है। He did the same thing and God has God healed him. और उसने बहुत सारा क्या बोलते हैं गिफ्ट लेके आया एलिशा के पास। And he bought many gifts for Elisha. एलिशा एक भी छुआ नहीं, Elisha did not touch even a single thing. तुम्हारा पास ही रखो। He said, what is yours, you keep it with you. लेकिन एलिशा का नौकर पीछे पीछे गया, But the servant of Elisha, he went behind him उसके पास जाकर कई बातें बोलकर कुछ गिफ्ट लेके आया, and he spoke to that person and he bought some gifts. घर में लेके आकर रखकर एलिशा के सामने खड़ा हो गया। And he bought it in the house and he was standing in front of Elisha. एलिशा ने पूछा, Elisha asked, कहाँ पर जाके आ रहे हैं? where did you come from? नहीं, इधर ही था मैं। He said, I was just here. तू उधर जाने के समय मेरा मन तेरे साथ में नहीं था क्या? When you walked, my heart was with you.
तू उससे गिफ्ट लेकर आया है, You had bought some gifts from him. तो और एक बार और एक चीज भी तू ले लेना, So you take one more thing. उसका जो लेप्रस है वो भी तू ले ले। You take the leprosy which he had. एलिशा को अथॉरिटी था वो बीमारी को ट्रांसफर करने के लिए, Elisha had the authority to transfer the disease. ऐसा ट्रांसफर करने का एम्बेसडर है अपन, We are such an ambassador who can अपन transfer the साधारण disease. लोग नहीं है, We are not ordinary अपन people. सब जन एम्बेसडर्स We है। all are an ambassador. लोग आपको अपने को देख कर डरना है, People should get scared with us. लेकिन अपना वीकनेस किधर है? अपना वीकनेस अपने अंदर ही है, जो प्रार्थना का वीकनेस है। The weakness is in us. और जो अंडरस्टैंड अपन कौन है करके अंडरस्टैंड कर लेंगे तो We don't pray, and if you understand who we are, तो जरूर उसे अपन प्रैक्टिस में लेके आएंगे। like 100% we're gonna get it in practice. ट्रांसफर मत कर दीजिए, Do not transfer, please. प्रैक्टिस करता हूं करके ट्रांसफर प्रैक्टिस मत कीजिए। Do not try transferring the disease. Don't practice transferring the लेकिन disease. आपसे हो सकता है, But you can do it. प्रभु जरूर करेंगे। God will do it. हाँ, पौल आकर कहा एक आदमी को देखकर, Paul said to one person, आज के बाद सूरज का रोशनी को तू नहीं देखेगा। from today onwards you will not see the morning sun. इमीडिएटली ब्लाइंड हो गया, At the same moment he was blind. और पौल ने कहा And Paul said, अगर ज्यादा कुछ लफड़ा कर रहे तो उसको शैतान के हाथ में सौंप देना। and if he is troubling more, then surrender him to the Satan. शैतान के हाथ में सौंप देना करके उसने कहा, He said, surrender him to Satan. दैट इज बीमारी के हाथ में सौंप देना। That means to surrender himself to sickness. तो हम साधारण लोग नहीं है, We are not ordinary people. हमें प्रभु एम्बेसडर करके प्रभु ने चुना है। God has chosen us as So we are, ambassadors. हम सब जन सीर है, we are messenger। We all are seed messengers. ये हार्वेस्टिंग फीस के अंदर In this harvesting feast, हमें प्रभु एक एम्बेसडर जैसा रखा है। God is kept as an ambassador. तो ये सीर के हाथ में क्या होना So चाहिए? what should be there in seer's hand? हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं आप, You're going for a harvesting. हार्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए। You have to have that weapon for harvesting. यहाँ पर ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है, The first alphabet, ये कोफ करके बोलते हैं। it's called a scof. कोफ का मतलब होता है एक्स हेड। Kof means the axe head. सो एक्स जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। Axe is a weapon. सो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट के लिए इंडिकेशन है? It's an indication for which ये instrument? फील्ड वर्क के लिए एक वेपन का इंडिकेशन है। It's a weapon for field work. से मैसेंजर के हाथ में क्या है? So what does the messenger has in his hand? एक वेपन प्रभु ने हाथ में दिया है। God has given a weapon in his hand. और आज हार्वेस्ट के हाथ में क्या है? What do you have in your हमारे hand? हाथ में प्रभु ने सिकल दिया है। God has given sickle in your हम hand. उन्हें प्रॉपरली अपन क्या करना है? हार्वेस्टिंग करना You है। have to properly harvest with that. और उसका फर्स्ट फ्रूट आप प्रभु को चढ़ाना And है। you have to give the first fruit to the Lord. वो लीडरशिप है। That is leadership. देखो ये हार्वेस्टिंग के अंदर प्रभु ने हमें रखा है। See, God has kept us in this harvesting. ये और एक वचन अपन पढ़ेंगे, Let's read one more verse. मैथ्यू 9 चैप्टर, Matthew chapter 9. उसमें 37 और 38 अपन पढ़ेंगे। Let's read the 37 and the 38th verse. Then said he unto his disciples, हाँ The harvest truly is plenteous, हाँ but the laborers are few. हाँ Pray ye therefore the Lord of the harvest, हाँ that he will send forth laborers into. तेव्हा तो आपल्या शिष्यांना म्हणाला, हाँ पीक फार आले आहे, पण काम करी थोडे आहेत. हाँ यास्तव पिकाच्या धन्याने हाँ आपल्या कापणीस काम करी पाठवून द्यावेत, हाँ. म्हणून त्यांची प्रार्थना करा.